یہ بھی فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو قیامت کے دن بارگاہ الہی میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا کہ نماز پڑھتا رہا یا نہیں۔ اگر کسی نے نماز ہی نہیں پڑھی قیامت کے دن اپنے رب کو وہ کیا جواب دے گا یا دے گی۔ آج جو ہے حالات کیسے ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اللہ نے ہم کو یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھیں، اپنی ایمانوں کو درست کریں اور سمجھیے کہ روزہ جو ہے وہ چوتھے نمبر کا فریضہ ہے۔ اگر ہم چوتھے نمبر کی بات پر عمل کرتے ہیں تو دوسرے نمبر کی بات کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے روزے کے متعلق تو یہ بھی اجازت دی ہوئی ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةً طَعَامُ مِسْكِين کہ یہ کسی کو کفارے کے طور پر روزہ رکھوا دے۔ اللہ نے اس روزے کو معاف کر دیا کہ اگر کوئی انسان بیمار ہے، ایسی بیماری ہے کہ اس کو شفا یابی نہیں ہو سکتی یا اتنا ضعیف ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو کیا ہے کہ وہ کسی کو روزہ رکھوا دے کفارے کے طور پر، اس کو روزے کا ثواب مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تیسرے چوتھے نمبر کا فریضہ ہے جو کئی لوگوں کو معاف ہے۔ نماز ایسا فریضہ ہے کہ اللہ نے کسی بھی انسان کو معاف نہیں کیا، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز جو ہے، فرمایا کہ نماز اتنا اہم فریضہ ہے کہ اگر کوئی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے۔ اگر کسی میں کھڑے ہونے کی سکت نہیں، اس کو بھی نماز معاف نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھ لے۔ اللہ کے رسول ایک آدمی بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیٹ کے پڑھ لے۔ یہ نہیں کہا جو بیٹھ کے نہیں نماز پڑھ سکتا وہ نہ پڑھے، اس کو نماز معاف ہے، کہا بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ کے بھی انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، فرمایا اشارے سے نماز پڑھ لے۔ جس کے ہوش و حواس قائم ہیں اللہ نے اس کو نماز معاف نہیں کی، اشارے کے ساتھ پڑھ لے۔ اتنی سخت بیماری کے عالم میں بھی نماز کو معاف نہیں فرمایا۔ حالانکہ دوسری طرف چلتے پھرتے آدمی کو جو بیمار ہے اور اس کی شفا یابی کی کوئی توقع نہیں ہے، خیال یہ ہے کہ روزہ رکھے گا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، چلتا پھرتا ہے، اس کو روزہ معاف کر دیا۔ لیکن نماز اگر کوئی اشارے کے ساتھ پڑھ سکتا ہے اس کو بھی معاف نہیں فرمائی۔ اس شخص کو نماز معاف ہے جس کے ہوش و حواس قائم نہیں ہے، اس کا وجود اور عدم وجود برابر ہے، اس قدر نماز کے بارے میں تاکید ہے۔ قرآن کی طرف آؤ، اللہ رب العزت نے نماز کو عین حالت جنگ میں بھی معاف نہیں کیا کہ گولیاں برس رہی ہوں، تلواریں چل رہی ہوں، تیروں کی بارش ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلواریں چل رہی ہوں یا دشمن خون کا پیاسا ہو، ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اٹھو باجماعت نماز ادا کرواؤ۔ طریقہ کار کیا ہے؟ آدھے لوگ جو ہیں وہ نماز اپنا پڑھائیں گے اور آدھے لوگ جو ہیں وہ پیچھے ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو آپ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟ بے نمازیوں کو کیا فرمایا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ایسے نمازیوں کے لیے بھی جہنم ہے جو سستی کے مارے ہوئے کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی۔ تو کیا ہے، کسی نے پوری نہیں پڑھی، کسی نے 2 پڑھ لی، کسی نے 1 پڑھ لی، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی نمازیں 5 اتاری ہیں، رسول اللہ نے 5 نمازوں کو فرض قرار دیا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم اپنی مرضی کے مطابق کبھی 1 پڑھ لی کبھی 3 پڑھ لی، تو ہم لوگ یہ ہے پوری نماز نہ پڑھیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص قیامت کے دن جو ہے دوہرے عذاب کا مستحق ہے۔ ایک تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور دوسرا اس نے شریعت کا مذاق اڑایا، اس نے دوہرا جو ہے وہ جرم کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیوی کو جو ہے نماز پڑھانا خاوند کی ذمہ داری ہے، اور آج بے شرمی کی انتہا یہ ہے کہ آج کے زمانے میں بیویاں خاوندوں کو نماز پڑھاتی ہیں۔ بیوی 5 گانا وقت کی نمازی ہے، خاوند بدبخت نے کبھی نماز کا چہرہ ہی نہیں دیکھا، بڑی بہادری کی جمعے کے دن مسجد میں چلے گئے، اور ایسے بھی بد نصیب موجود ہیں جن کو جمعے کے دن بھی مسجد کی توفیق نہیں ہوتی، وہ صرف عید کی عید آتے ہیں، اور ایسے بد نصیب ہیں کہ عید کے دن بھی اللہ ان کو اپنے سامنے جو ہے وہ سجدہ ریز ہونے کی توفیق نہیں دیتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کو نماز پڑھانا بھی خاوند کی ذمہ داری ہے،
اور नाबालग बेटे और बेटी को नमाज़ पढ़ाना भी बाप की ज़िम्मेदारी है। क़यामत के दिन ऐसे शोहर, ऐसे बाप मुजरिमों की सफ़ में उठाए जाएंगे जो ख़ुद तो नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन घर वालों को कभी नमाज का हुक्म नहीं देते। आप ज़रा सोचिए, अगर जिनके घर वाले नमाज नहीं पढ़ते वो मुजरिमों की सफ़ में उठेंगे, और जो इंसान खुद नमाज नहीं पढ़ता वो किस तरह मोमिनों की सफ़ में उठेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, एक आदमी इसके अमाल का वज़न हो चुका होगा, अल्लाह कहेगा जाओ इसे जन्नत में ले जाओ, इसके अमाल भारी हैं, जन्नत में जाने लगेगा। एक औरत चीखती हुई आएगी, कहेगी अल्लाह इनको ज़रा रोकिए, ये नमाजी साहब जन्नत में मुझको छोड़कर जा रहे हैं। अल्लाह के हुक्म से रोका जाएगा, रुक जाओ। कहेगी अल्लाह ये जो बदबख्त है ना, ये मेरा शोहर है, खुद नमाज़ पढ़ता था। ठीक है जी। अगर हंडिया में नमक कम या ज़्यादा हो जाता था तो ये चीखता चलाता था, रोटी पकाने में देर हो जाती थी घर को आसमान पे उठा लेता था, लेकिन अल्लाह इसने कभी मुझे नमाज की तलकीन नहीं की थी। अल्लाह मैं जहन्नम में जा रही हूँ, ये जन्नत में कैसे जा रहा है, ये चाहता तो मैं भी कभी नमाज की तारक ना हो सकती थी। अगर मर्द जो है हर मामले में सख्ती कर सकता है तो क्या वो सख्ती करके अपने बच्चों को और अपनी बीवी को नमाज नहीं पढ़ा सकता। तो वो कहेगी कि अल्लाह इस बदबख्त को भी जहन्नम में लेके जाओ। क्यों? क्योंकि इसने खुद नमाज़ पढ़ी है, इसलिए ना बीवी को नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया, ना बच्चों को नमाज दिया, ये भी जहन्नम में जाएगा। एक और जा रहा होगा, इसकी बेटी चीखती चिल्लाती आएगी कि अल्लाह ये मेरा बाप था, खुद तो मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ता था लेकिन मुझे कभी सख्ती से नमाज का हुक्म नहीं दिया था। अल्लाह कहेगा इसको भी जहन्नम में ले जाओ। छोटी बहन आएगी, इसके मुतालबे पर इसको भी जहन्नम में भेज दिया जाएगा। माँ आएगी, अल्लाह ये जवान बेटा था, इसने कभी मुझे दीन का दरस नहीं दिया था, इसने कभी मुझसे नमाज की दरख्वास्त नहीं की थी। अल्लाह कहेगा इसको भी जहन्नम में ले जाओ। एक नमाजी इंसान अपने 4 बेनमाज रिश्तेदारों की वजह से अगर जहन्नम में चला जाएगा तो जो इंसान मर्द या औरत खुद नमाज नहीं पढ़ते तो वो जन्नत में कैसे जा सकते हैं। कभी सोचिए समझिए, इस सारी बीमारी का सबब क्या है। सारी जो ये बीमारी हमें लगी हुई है इसका सबब दुनिया है। ये दुनिया जिसकी आखिरत के मुकाबले में एक पर की हैसियत भी नहीं है, एक कतरे की भी हैसियत नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था दुनिया की हैसियत आखिरत के मुकाबले में ऐसी ही है जिस तरह एक कतरा पानी की हैसियत समंदरों के मुकाबले में होती है। कितने बदनसीब और बेवकूफ़ हैं हम लोग कि एक कतरा पानी के लिए समंदर को ठुकरा देते हैं। कितने अहमक हैं कि हम लोग 60 साल ज़िंदगी की वजह से तबाह कर देते हैं। ये जो आदमी भी नमाज नहीं पढ़ता, क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि गफलत में पड़े हुए हैं। अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल के अल्लाह के लिए गर्मियों की चिलचिलाती धूप में और सर्दियों की ठिठुरती फजर में उठकर अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना है तो क्या ये बात इतनी दुश्वार है। जिन लोगों को अल्लाह नमाज की आदत डाल देता है, जब वो नमाज नहीं पढ़ते तो इनको बेचैनी महसूस होती है, इनको रात को नींद नहीं आती। ठीक है, वो अगर सो भी जाएं तो वो सारी रात करवटें ही लेते रहते हैं क्योंकि उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, वो नमाज के आदी हो जाते हैं। तो अगर देखिए तो कितना टाइम लगता है नमाज के बीच में। 4 रकतें सुबह की हैं, 8 रकतें ज़ोहर की हैं, अगर बड़ी तकलीफ़ है तो 4 ही पढ़ लें। फ़र्ज़ तो रब माफ़ नहीं ना करता। 4 रकतें असर की, 5 रकतें मगरिब की हैं, कम से कम 7 रकतें इशा की हैं, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नतें और 1 वितर। क्या तकलीफ़ हो जाती है क़यामत अगर बीत जाती है। ये तो वो है ना जो फ़र्ज़ नमाज है, लेकिन अगर हम सुन्नतें व नवाफ़िल पढ़ेंगे तो ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा पढ़ेंगे उसी हिसाब से अल्लाह सवाब भी ज़्यादा देगा। ठीक है, अगर सिर्फ फ़र्ज़ नमाज को ही देखा जाए तो ये सारे मजमूई वक्त को शुमार किया जाए तो आधा घंटा नहीं बनता। तो क्या इतने में क़यामत आ जाती है। हमारी दुनिया का कौन सा काम है जो रुक जाता है अगर हम ये नमाज ना करें। ठीक है जी। इस जिस्म को हम इतना अजीज़ रखते हैं, हम ये नहीं जानते कि इस जिस्म को आखिर में कीड़ों ने खाना है, जिनके लिए हम दिन रात जो है कमाते हैं, काम करते हैं। ठीक है जी। ये बच्चे जो हैं हम समझते हैं कि अगर हमने नमाज़ पढ़ ली तो हमारा टाइम ज़ाया हो जाएगा, हमारे रिज़्क में कमी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी आपने ये नहीं सोचा कि जिस औलाद के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी औलाद के लिए आप लोग जो है नमाज़ें छोड़ देते हैं, अपने काम जो है वो करते रहते हैं। लेकिन सोचिएगा जिस दिन आप मर जाएंगे तो क्या होगा। ये औलाद ने एक दिन भी आपको अपने घर में नहीं रखना। औलाद का क्या हाल होता है, इसके जिस्म को अपने घर में एक दिन के लिए भी रखना गवारा नहीं करती।
यही औलाद जो है कंधों पे उठा के ले जाती है और घड़े में डाल आती है, मट्टी के नीचे दबा के अकेला छोड़ के वापस आ जाती है। क्या कभी किसी ने देखा है कि कोई मरा हुआ हो और इसके बेटों ने या बेटियों ने कहा हो कि हम भी साथ ही जाते हैं? अकेला छोड़ के फेंक आते हैं। जिस दुनिया के कमाने के लिए नमाज के औकात में हम अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी देने के लिए नहीं उठते, इस दुनिया का ये हाल होता है कि मरने के बाद जाते हैं तो दुनिया से सिर्फ 4 गज के कफन का टुकड़ा लेके जाते हैं। कभी किसी के साथ दुनिया गई है? कभी कोई बड़ा अमीर आदमी मर गया हो, कोई बादशाह मर गया हो, लोगों ने कहा हो कि इसकी कोठी भी इसकी कब्र के अंदर रख दो, इसकी कार भी रख दो, ये तो एसी के बगैर सो नहीं सकता था, इसके कब्र के अंदर एसी भी लगा दो, कुछ भी नहीं लगता। क्या होता है कि ये दुनिया का सिस्टम यही है। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि कब्र के अंदर रख के आना है तो तभी जो है वो रख के आते हैं। लेकिन अंदर वाले को तो तभी फ़ायदा होगा ना कब्र के अंदर उस इंसान को जाकर, जब अल्लाह ने इसके अंदर जन्नत की खिड़कियों में से खिड़की खोलनी है, इसके अंदर को जन्नत का टुकड़ा बना देना है। अंदर वाले को तो तभी फ़ायदा पहुँचेगा, और ये फ़ायदा किसको पहुँचेगा? हदीस पाक में आता है कि इसको जिसने अपने आप को नमाज की आदत डाली, जब लोग इसे दफना के चले गए तो अल्लाह के हुक्म से उसे उठाया गया। सवालो जवाब के लिए मुनकर नकीर आए, जब उठाया जाएगा नबी कायनात ने फरमाया असर की नमाज का वक्त हो जाएगा। चाहेगा कि कोई रात के वक्त दफन हो, चाहे सुबह के कब्र के अंदर दफनाए जाने के फ़ौरन बाद इस तरह का वक्त होगा जिस तरह असर का वक्त होता है। उठा के बिठाया जाएगा, उठो अल्लाह की बारगाह में जवाबदेही के लिए हाज़िर हो। जिसको नमाज की आदत पड़ी हुई होगी, असर का वक़्त होगा, देखेगा, कहेगा रुक जाओ, मेरे सवालात का जवाब बाद में देता हूँ, मेरे सवालात आपके सवालात का जवाब जो मैं बाद में देता हूँ, पहले मुझे असर की नमाज जो है वो अदा कर लेने दो, मेरी नमाज ज़ाया ना हो जाए। अल्लाह के फरिश्ते इस इंसान की बात सुनकर इसको इस तरह लुटा कर चले जाएंगे कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह नई नवेली दुल्हन को प्यार से रिश्तेदार लौटा के चले जाते हैं, कहेंगे तुझसे सवाल जवाब की ज़रूरत नहीं। ये कौन कहेगा? नमाज पढ़ती है जिसको दुनिया में नमाज की आदत पड़ी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको नमाज की आदत नहीं, अल्लाह कहेगा इसको हशर के दिन तक मुंतज़र ना ठहराओ, इसकी कब्र ही को जहन्नम का एक हिस्सा बना दो, जब तक क़यामत नहीं आती तब तक जहन्नम में जलता रहे। इसीलिए उलमा ने कहा है कि ऐसा शख्स जो नमाज़दा नहीं करता, इसकी नमाज जनाजा पढ़नी जायज़ नहीं। बाज़ उलमा तो नमाज जनाजा पढ़ाते ही नहीं थे। बाज़ उलमा तो यहाँ तक कहा है कि ऐसे शख्स को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करना चाहिए। ऐसा शख्स मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन होने का भी हक़ नहीं रखता। ठीक है, तो आज जो है वो हमें इस बात का इकरार करना चाहिए कि अल्लाह जो है हमें नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। देखिए ना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से क्या दुआ मांगी थी? रब्बी जाली मुकीमस्सलात, अल्लाह मुझे नमाज पे पुख्ती से कायम रहने वाला बना, मेरी औलादों को अल्लाह नमाजी बना, मेरे घर वालों को नमाजी बना। पहले अहद करीब की दुआ मांगी, और अल्लाह की कसम जिस शख्स ने अपनी औलाद को नमाज की तलकीन नहीं की, अपने बच्चों को नमाजी नहीं बनाया, जिस दिन इसकी आंखें बंद होंगी बच्चों का रिश्ता टूट जाएगा। जिसने बच्चों को नमाजी बनाया ये मर जाएगा, बच्चे का रिश्ता बरकरार रहेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा मर जाता है सारी नेकियां ज़ाया हो जाती हैं सिवाय उसकी नेक औलाद के। अगर नेक औलाद है, ठीक है, बेटे हैं, बेटियां हैं, तो नेक औलाद हर नमाज के बाद अपने हाथ उठाती है, अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगती है। अपनी औलाद को भी अगर अपने से इनका रिश्ता ताल्लुक़ कायम रखना चाहते हैं तो नमाजी बनाएं। ये ज़िंदगी 60 साल की, 65 साल की ज़िंदगी इस ज़िंदगी के मुकाबले में क्या हैसियत रखती है? जिस ज़िंदगी का पहला दिन ही 50,000 साल लंबा होगा, क़यामत का दिन, हशर के मैदान का दिन कितना लंबा होगा? हमसीना अल्फ़ा सनतुम मिम्मा तउद्दून, 50,000 साल। अब कितना मतलब अहमक हैं वो लोग, हम लोगों के 60 साल ज़िंदगी को बनाने के लाखों सालों की ज़िंदगी को ख़राब करती है। बेहतरीन इंसान वो है जिसको अल्लाह ने इस ज़िंदगी में मौका अता किया है, खुद नमाजी बने, अपनी औलादों को नमाजी बनाए, कानूनी मुसलमान जो है ना बने बल्कि हकीकी मुसलमान बने, अल्लाह की निजात का मुस्तहिक बने। औलाद के बारे में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? जब बच्चा 8 बरस का हो जाए इसे नमाज सिखाओ, जब बच्चा 10 साल का हो जाए
مار کے نماز پڑھاؤ، اگر پھر بھی نماز نہ پڑھے تو مارو، کیونکہ 10 سال کے بعد اگر بچے نے نماز ترک کی تو اس کی ذمہ داری اس کے والد پر ہے، جب بڑا ہو گیا پھر وہ جانے اور اس کا رب جانے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ بچپنے میں اپنے بیٹے یا بیٹیوں کو نمازی بنا دیتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو ساری عمر نمازی بنائے رکھتا ہے، وہ کبھی نماز نہیں چھوڑتے، لیکن جو لوگ بچوں کی تربیت نہیں کرتے ان کی اولاد کبھی نیک نہیں ہو سکتی۔ لوگوں بچوں کو نمازی بنانے کے لیے یہ بہترین ہے۔ اللہ جو ہے ہم سب کو بھی صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نمازی بنائے، اللہ ہمارے گھر والوں کو بھی نمازی بنائے، اللہ ہماری اولادوں کو بھی نمازی بنائے، اور اللہ ہماری ساری امت مسلمہ کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔